युवा वही होता है जिसके हाथों में शक्ति, पैरों में गति, हृदय में ऊर्जा और आंखों में सपने होते हैं। Namaskar. A very warm good afternoon to all. I am Priyanka Bose from Political Science Department, and I would like to welcome you all in this webinar to celebrate National Youth Day, being organized by Swami Vivekananda Youth Cell, National Service Scheme, Department of Political Science and Public Administration. I would like to welcome eminent speakers of the day, Dr. Devendra and Shri Narendra Yadav. Now, I would like to request Dr. Shami Nagpal, in charge, Department of Political Science and Public Administration, to introduce our worthy guests. Dr. Shami Nagpal. Honorable guests for today, Dr. D.S. Dahiya, Director Students Welfare, CCS HEU Hisar, Shri Narendra Yadav ji, Director Nehru Yuva Kendra, officiating principal for today, Mrs. Aruna Kat, Program Officers of NSS, in charge Swami Vivekananda Youth Cell, fellow colleagues from the Departments of Political Science and Public Administration, I welcome you all to the one-day webinar on the National Youth Day. यहाँ उपस्थित सभी जन में शायद ही कोई ऐसा हो जो स्वामी विवेकानंद से परिचित ना हो। आज का दिन स्वामी जी का जन्म हुआ था और सन 1985 से उनकी जयंती को हर साल राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। आज का दिन युवा दिवस के साथ साथ विवेकानंद जी की 157वीं जयंती भी है। राष्ट्रीय युवा दिवस भारत के उन युवाओं व नौजवानों को समर्पित खास दिन है जो देश के भविष्य को बेहतर और स्वस्थ बनाने की क्षमता रखते हैं। विवेकानंद जी के अनुसार व्यक्ति को तब तक मेहनत करनी चाहिए जब तक वह अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच जाता। In remembrance of Swami Vivekananda and to celebrate the National Youth Day, we have invited two personalities from Hisar on day-to-day basis. Before we introduce our guest, I would like to share with the audience that our Dr. Vikram has not been able to join us due to some unforeseen circumstances and has conveyed his regards to the speakers. A few words about Dr. D.S. Dahiya. Dr. D.S. Dahiya, Director Students Welfare, मैम ये इको हो रहा है इको Horticulture at Maharana Pratap. He has been a meritorious student through his academic and position in university in MSc Horticulture. He has guided 5 PhD scholars and 8 post-graduation scholars, has published 2 research papers in reputed journals, and been honored with Certificate of Honor in recognition of books and manuals authored during the period 2004-2007. Apart from his academic achievements, which are many, he has played squash at national level and has also been into mountaineering. I welcome you, sir, wholeheartedly to our institution. Now a few words about Shri Narendra Yadav ji. He is the Deputy Director, Nehru Yuva Kendra, Hisar. He has done his MPhil in human rights and has been youth coordinator in various districts like Fatehbad, Sirsa, Bhiwani, Kurukshetra, and as district youth coordinator in districts like Rewari, Yamunanagar, and Panchkula.
He has trained lakhs of youth in personality development, water conservation, and cleanliness drive. He has organized various drives like 600-kilometer Pad Yatra for water resource management and 1,000-kilometer Cycle Yatra for water conservation. He is also the recipient of the National Water Award and Rashtriya Jal Biradari Award. I welcome you also, sir. And now I'd like to request our officiating principal, Mrs. Aruna Kad, to welcome our esteemed guests formally. Ma'am Aruna Kad. Hello, am I audible? Hello. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Namaskar. Yes, ma'am, you're audible. Okay. I welcome Mr. Narendra Yadav and Dr. Devendra Singh Diya for this very informative session, and definitely our students will be going to be very we can say they are going to get benefited from your knowledge, because on this day we are going to celebrate the Youth Day, and our youth are here to hear you. Thank you. Now I just invite Shri Narendra Yadav for his address. Shri Narendra Yadav ji. Thank you, ma'am. नेशनल यूथ डे के इस शुभ अवसर पर आप सभी का अभिनंदन है, सबका स्वागत है। आज स्वामी विवेकानंद जी की जयंती का आयोजन पूरे भारतवर्ष में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में मनाया जा रहा है, और आज का दिवस युवाओं के लिए विशेष दिवस है, और खासकर भारत में युवाओं की शक्ति और संख्या को देखते हुए भारत एक युवा देश है। भारत के जन जन में युवा है, भारत के मन में युवा है, भारत अपने युवाओं से युवा है, और भारत इस मुकाम पर है कि हम विश्व में सबसे ज्यादा आगे बढ़ने के मुकाम पे हैं। मैं इस अवसर पर हमारे बीच उपस्थित ऑफिशिएटिंग प्रिंसिपल मैडम अरुणा कद, आदरणीय डॉक्टर देवेंद्र सिंह दैया जी, डायरेक्टर स्टूडेंट वेलफेयर CCS HAU हिसार, इनका भी अभिनंदन करता हूं और स्वागत करता हूं। आज जब हम निरंतर आगे बढ़ते जा रहे हैं और विश्व में आज हमारी एक अलग पहचान हो गई है, और वो युवाओं के बदौलत है। स्वामी विवेकानंद का जन्म 1863 12 जनवरी को हुआ, आप सभी जानते हैं। उनके जीवन में ऐसे कितने ही अनुभव आए, कितने ही ऐसे उन्होंने काम किए जिससे हमारे देश का मस्तक गौरव से उठ जाता है और हमारी युवा शक्ति में एक नई प्रेरणा आती है। स्वामी विवेकानंद जी हमेशा कहते थे कि स्ट्रेंथ इज लाइफ, वीकनेस इज डेथ। उन्होंने हमेशा युवाओं को एक नई चेतना भरने का काम किया। और अगर मैं बात करूं कि भारत के निर्माण में युवाओं का क्या योगदान है, हम अगर फ्रीडम स्ट्रगल से अपनी बात को लेकर चलें, देश की आजादी से भारत के निर्माण को लेकर चलें, तो हमेशा से आप जानते हैं कि ऐसे कितने ही नौजवान साथी जिन्होंने भारत की आजादी की लड़ाई में अपना प्राणों का बलिदान दिया, और आज जितने भी नौजवान साथी है वो देश के निर्माण में अपना योगदान दे रहे हैं।
शहीद भगत सिंह, खुदीराम बोस, चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु, सुखदेव, कितने ही ऐसे हमारे बलिदानी हैं जो युवावस्था में जिन्होंने देश की आजादी के लिए काम किया और देश को आजाद कराया, देश के निर्माण में भागीदारी की। आज देश उनके सपनों पर, उनके सपनों का भारत बनने के लिए आगे बढ़ रहा है और नौजवान साथी इसमें अपनी भूमिका अदा कर रहे हैं। मैं कहूं कि भारत की जो चिंतन है उसमें भी युवा है, मैं कहूं कि भारत के सपनों में भी युवा है, भारत की प्राचीनता में भी युवा शक्ति है, भारत के पराक्रम जो है वो भी युवा है। अध्यात्म की दृष्टि से भी हम देखें तो कितने नौजवान साथियों ने इस देश को प्रेरणा दी है और इस देश के नौजवान साथियों को प्रेरणा देने का काम किया है। श्री अरविंदो जिनकी 100वीं पुण्यतिथि मनाई जा रही है इस वर्ष, उन्होंने देश को एक नई दिशा देने का काम किया। स्वामी विवेकानंद ने अपनी छोटी सी आयु में नौजवान साथियों को प्रेरणा देने का काम किया और वही नौजवान साथी आज उनकी आध्यात्मिक दृष्टिकोण से, उनके सपनों से, उनके कर्तव्यों से, उनके जो भी उन्होंने काम किए और जो उन्होंने इंस्पिरेशन युवाओं को दी, उससे आज हम आगे बढ़ रहे हैं। भारत के पास 2 शक्ति विशेष रूप से है, युवा शक्ति और एक युवा प्रकृति। हम अपनी युवा शक्ति के बदौलत आज आगे बढ़ रहे हैं। निश्चित तौर पे अगर हम देखें कि नौजवान साथियों की वजह से देश का निर्माण बहुत ही आसान होता जा रहा है और आप किसी भी देश के निर्माण में जब आप बात करेंगे, निर्माण की बात करेंगे, तो निश्चित रूप से युवाओं का योगदान बहुत ही बड़ा योगदान है। और जो हमारी डेमोग्राफी है, जो हमारी जनसंख्या है, उसके आधार पे हम देखें तो निश्चित रूप से हम जो है लगभग 70% जो हमारी आबादी है वो यूथ है और उस यूथ की शक्ति के बदौलत हम आगे बढ़ रहे हैं। हम कोई भी विषय उठाएं, चाहे हमारा शिक्षा का विषय हो, उसमें बहुत से हमारे ऐसे नौजवान साथी रहे हैं जिन्होंने इस देश को गौरवान्वित किया है और इस देश में शिक्षा प्राप्त करके विश्व की सेवा कर रहे हैं, जगत की सेवा कर रहे हैं। आप स्किल इंडिया को ले सकते हैं। स्किल इंडिया में हमारे नौजवान साथियों ने बहुत बड़ा काम किया है और अलग अलग स्टार्टअप्स शुरू किए हैं और उसी की बदौलत आज हमारे देश जो है, देश की जो निर्माण है या देश का जो आगे बढ़ने का गति है वो बहुत तेज हो गई है। कल्चरल हेरिटेज के दम पर हम आज विश्व में प्रसिद्ध हैं और हमारी ऐसी बहुत से कल्चरल हेरिटेज है जो हम आज विश्व को दिखा रहे हैं और उसमें हमारे नौजवान साथियों का बहुत बड़ा योगदान है। स्पोर्ट्स एक ऐसा फील्ड है जिसमें आज हम भले धीमी गति से बढ़ रहे हैं, लेकिन नौजवान साथियों को इससे प्रेरणा लेने की जरूरत है। और इस बार अगर आप देखेंगे कि हमारे ओलंपिक और पैरा ओलंपिक में हमने सबसे ज्यादा मेडल जीते हैं। उसमें अगर हम बात करें नीरज चोपड़ा की या बजरंग पुनिया की या अलग अलग हमारे जो साथी पैरा ओलंपिक में भी गए, उनकी भी बात करें तो निश्चित रूप से उन्होंने एक बहुत बड़ा योगदान हमारे देश को दिया है और हमारे देश के निर्माण में, हमारे देश के उत्थान में, हमारे देश के मस्तक को ऊंचा करने में बहुत बड़ी भूमिका अदा की है। एनवायरमेंट के क्षेत्र में अगर हम जाएं तो हमारे कितने ही नौजवान साथी आज इस देश को हरा भरा बनाने के लिए, इस देश को प्रदूषण मुक्त करने के लिए काम कर रहे हैं। हमारे देश में जल संरक्षण के लिए नौजवान साथियों ने बहुत बड़ा काम किया है और बहुत अलग अलग नमामि गंगे एक प्रोजेक्ट है जिसमें हमारे नौजवान साथियों ने पूरे गंगा जो नदी है, हमारी जो पवित्र नदी है, उसको स्वच्छ करने में बहुत बड़ा काम किया है। भारत सक्षम युवाओं की बदौलत ही सशक्त भारत है। अगर सशक्त भारत की जब हम बात करते हैं तो सक्षम युवा की बात करते हैं, सशक्त युवा की बात करते हैं। स्वामी विवेकानंद की जब हम बात करते हैं आज के दिवस पे, क्योंकि उनकी जयंती को हम सब मना रहे हैं और हमें बहुत बड़ी प्रेरणा मिल रही है। स्वामी विवेकानंद हमेशा कहा करते थे कि निडर बनो, करेजियस बनो, करेज रखो, आदमी अपने आप को साहसी बनाए और फियरलेसनेस उसके अंदर आनी चाहिए। हमेशा स्वामी विवेकानंद ने निडरता की बात की है। आज मैं नौजवान साथियों से ये कहना चाहता हूं कि निडरता कैसे आती है।
निडरता आती है जब हम ऑनेस्ट रहते हैं, हम ऑनेस्ट अपने पेरेंट्स के प्रति ऑनेस्ट रहते हैं, हम ऑनेस्ट अपने पढ़ाई के प्रति ऑनेस्ट रहते हैं, ऑनेस्टी इन आवर बुक्स, ऑनेस्टी इन आवर रिलेशंस, हर चीज में जब हम ऑनेस्ट रहते हैं तो हमारे अंदर फियरलेसनेस आती है और ऑनेस्टी के दम पे ही हम जो है साहसी बनते हैं। कोरेज एक ऐसा शब्द है जिसको हम अगर उसको अलग अलग लेटर में विभक्त करें या उसको डिवाइड करें तो उससे बहुत सी हमारे को प्रेरणा मिलने का काम होता है। करेज में 7 लेटर है। 7 लेटर आज 7 जो की संख्या है वो बहुत ही पवित्र संख्या मानी जाती है। हमारे जो सुर है वो 7 है, हमारे रंग है वो 7 है, इंद्रधनुष के रंग 7 है और इस प्रकार से हम बहुत सी चीजें 7 रंगों से 7 सुरों से एक बहुत ही सुंदर भारत का निर्माण करते हैं, बहुत ही सुंदर संस्कृति का निर्माण करते हैं। तो इसमें जो करेज है उसमें 7 लेटर है और 7 लेटर से हम एक बहुत बड़ी प्रेरणा ले सकते हैं, देश में युवाओं को एक प्रेरणा दे सकते हैं। स्वामी विवेकानंद ने हमेशा ही जोर दिया कि निडरता से आगे बढ़ो। ऐसे ही एक उदाहरण जब हम देखते हैं कि स्वामी विवेकानंद जब विदेश में थे तो वो सड़क पर चलते हुए जा रहे थे तो पीछे पीछे बंदर उसके लगे हुए थे, तो स्वामी जी डर के मारे थोड़ा आगे आगे भाग रहे थे तो किसी साधु ने आके उनको कहा कि आप रुक जाओ, आप रुको, जब रुकोगे निडरता से सामना करोगे किसी भी चीज का तो निश्चित रूप से आपसे वो समस्या का निजात हो जाएगा। वही स्वामी जी ने किया और जब उन्होंने रुककर निडरता के साथ बंदरों का सामना किया तो बंदर भाग खड़े हुए वहां से। और स्वामी जी के दिमाग में एक बात आई, दिल में एक बात आई कि निडरता ही जीवन है। अगर निडरता से हम आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से हम सफल होंगे और आगे गति के साथ बढ़ते रहेंगे। तो मैं 7 लेटर की बात कर रहा था। 7 लेटर जो है, सी पहला लेटर है, मैं उसको थोड़ा सा डिस्क्राइब करना चाहूंगा। सी है जो हमारा कंटिन्यूटी इन हार्ड वर्क। कंटिन्यूटी इन हार्ड वर्क, हम हार्ड वर्क तो करते हैं लेकिन कंटिन्यूटी नहीं होती हमारे हार्ड वर्क में। अगर हम हमारे हार्ड वर्क में, हमारे मेहनत में, पराक्रम में अगर कंटिन्यूटी है, गतिशीलता है, निरंतरता है तो निश्चित रूप से हम आज अपने जीवन को आगे बढ़ा सकते हैं और देश के निर्माण में बहुत बड़ा योगदान दे सकते हैं। हमारे बहुत से नौजवान साथी ऐसे हैं जो आलस्य में सोए रहते हैं, आलस्य में अपना टाइम पास करते रहते हैं। मैं देखता हूँ कि कितने नौजवान साथी ऐसे हैं जो पीछे बैग लटका के, जो अपना बैग लटका के और हेलो 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 सर, सर टेक्निकल इशू वाज देयर, प्लीज कंटिन्यू। ओके मैम, थैंक यू। हाँ जी सर, ओके सर। तो मैं बात कर रहा था कंटिन्यूटी इन हार्ड वर्क और क्लीनलीनेस इन हार्ट। हम दिल से साफ रहें, दिल से स्वच्छ रहें और दिल से शुद्ध रहें तो निश्चित रूप से हम आगे बढ़ेंगे और हमारी जो मेहनत में है वो हार्ड वर्किंग निश्चित रूप से होनी चाहिए, तभी हम निडरता की तरफ बढ़ सकते हैं। उसके बाद है ओ फॉर ऑप्टिमिस्टिक। हमेशा व्यक्ति को ऑप्टिमिस्टिक रहना चाहिए किसी भी काम के लिए। नौजवान साथियों को निश्चित रूप से, हम बहुत जल्दी हथियार डाल देते हैं, हम बहुत जल्दी हार मान लेते हैं और ये सोचने लगते हैं कि नहीं अभी कुछ नहीं होगा। लेकिन जीवन जीने का नाम है, जीवन रफ्तार का नाम है, जीवन गति का नाम है। जैसे स्वामी विवेकानंद के जीवन से हमें प्रेरणा मिलती है कि हम हमेशा आशावान रहें, ऑप्टिमिस्टिक रहें और हमेशा जीवन में एक निरंतरता लेकर आए ताकि हम मेहनत के साथ आगे बढ़ते रहें। और यू फॉर अनशेकेबल डिटर्मिनेशन। हम संकल्प करते हैं, कल्पना करते हैं, नया साल शुरू होता है या कोई भी हमारा फेस्टिवल आता है तो हम अपने बच्चों को, अपने नौजवान साथियों को एक संकल्प लेने के लिए बातचीत करते हैं
लेकिन मैं देखता हूं कि हमारी संकल्प शक्ति इतनी वीक है, और वो इस वजह से है क्योंकि हमारे जो जीवन के मूल्य है, या जो हमारे आदर्श है, या जो हमारा संकल्प शक्ति लेने की जो हमारी शक्ति है, वो कमजोर है। कहीं ना कहीं हम उसको गति से या मजबूती से रखना नहीं चाहते, और हम 1 जनवरी को संकल्प लेंगे कि इस बार मैंने ये करना है, इस बार मैंने स्पोर्ट्स में आगे बढ़ना है, इस बार मैंने अपनी पढ़ाई लिखाई में आगे बढ़ना है, या इस बार मैंने आईएएस के लिए काम करना है, या इसलिए मुझे अपने किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयारी करनी है। तो लेकिन उनका संकल्प मैं देखता हूं कि वो 10-15 दिन बाद, या मुश्किल से 1 महीने बाद, 1 महीने तक ही चलता है, और उसके बाद वो संकल्प टूट जाता है और हम उस संकल्प के साथ काम नहीं कर सकते। तो इसलिए अनब्रेकेबल डिटर्मिनेशन जब हमारा होता है तो हमारे अंदर निडरता आती है। जब हम निडरता की बात करते हैं, फियरलेसनेस की बात करते हैं, तो वो 2 ही चीजों से आती है कि आपके अंदर ऑनेस्टी हो, आपके अंदर हार्ड वर्क हो, और आपका संकल्प जो है मजबूती से आपको पकड़ा होना चाहिए। उसके बाद है आर फॉर रिजल्ट ओरिएंटेड। रिजल्ट ओरिएंटेड अगर आपको रहना है तो निश्चित रूप से आपको मेहनत करनी पड़ेगी, और साहस के साथ मेहनत करनी पड़ेगी। आप देखते हैं कई बार हम बहुत मेहनत करते हैं, स्कूल्स कॉलेज में बच्चे बहुत मेहनत करते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत मेहनत करते हैं, नीट की परीक्षा के लिए बहुत मेहनत करते हैं, जेई की परीक्षा के लिए मेहनत करते हैं, और अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए तैयारी करते हैं। लेकिन जब हम साहस की कमी आ जाती है हमारे अंदर, तो हम ये देखते हैं कि मेहनत बहुत की, लेकिन जब अगर क्वेश्चन पेपर हमारे सामने आता है, चाहे वो परीक्षा का क्वेश्चन पेपर हो, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम का पेपर हो, तो हमारे अंदर ब्लैक एकदम से छा जाता है, और हमारे दिमाग एकदम तो ऐसे लगने लगता है जैसे मुझे कुछ आता ही नहीं है। वो सिर्फ नर्वसनेस की वजह से होता है और साहस की कमी की वजह से होता है। अगर हम साहसी रहें और हम हिम्मती रहें, तो निश्चित रूप से हमने जितनी मेहनत की है उससे ज्यादा हम रिजल्ट पा सकते हैं। और रिजल्ट पाने के लिए हमें रिजल्ट ओरिएंटेड होकर काम करना पड़ेगा, और निश्चित रूप से एक प्लानिंग करनी पड़ेगी कि हम रोज की एक प्लानिंग, छोटी छोटी प्लानिंग के साथ आगे बढ़ें। पूरे साल की प्लानिंग न करें, हम 1 दिन की प्लानिंग करें, हम 1 घंटे की प्लानिंग करें, हम 7 दिनों की प्लानिंग करें, उस हिसाब से हम आगे बढ़ सकते हैं। ए फॉर एक्शनफुल। हमेशा जीवन में एक्शनफुल रहना चाहिए। जीवन में जो हम कहते हैं, जो हम संकल्प करते हैं, चाहे वो कितना भी हमारा मजबूत संकल्प हो, लेकिन अगर संकल्प के साथ एक्शन नहीं है तो एक्शन के बगैर हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। नौजवान साथियों को मैं यही प्रेरणा देना चाहता हूं कि हमेशा उस काम को करने की मंशा रखो। उस काम को करोगे तभी वो आगे बढ़ेगा। कोई दुनिया में ऐसा काम नहीं है, कोई दुनिया में ऐसा चैलेंज नहीं है जिसको हम नहीं कर सकते हैं। हम हर कार्य को कर सकते हैं। अगर आप उस काम को एक बार हाथ में लेंगे और उसको करना सीखेंगे तो निश्चित रूप से हम बहुत तेजी से आगे बढ़ेंगे। हमारे ग्रामीण क्षेत्र के नौजवान साथियों के लिए, जो कॉलेजेस में पढ़ते हैं, यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, उनके लिए बहुत बड़ी समस्याएं ये आती है कि हमारा टाइम बहुत जाया होता है। हम आने जाने में, हम इधर उधर के गप्पे में, उधर उधर की बातों में बहुत समय जाया करते हैं, और फिर बाद में जो है हम अपने रिजल्ट पर को बढ़िया नहीं बना पाते हैं, रिजल्ट को अच्छा नहीं बना पाते हैं, और फिर हम कंपटीशन के एग्जाम में, या हमारा जो भविष्य है, हमारा फ्यूचर है, वो बहुत हम जो है उसको लेकर रोने लगते हैं। तो निश्चित रूप से हमें एक्शनफुल रहना चाहिए, काम करना चाहिए, मेहनत। जैसे भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है कि कर्म के अनुसार फल मिलता है। अगर कर्म करेंगे तो निश्चित रूप से आपको फल मिलेगा, अगर कर्म नहीं करेंगे तो आपको फल नहीं मिलने वाला है। क्योंकि फ्यूचर जो है वो हैबिट से बनता है। फ्यूचर जो है हम कह देते हैं हमारा सौभाग्य है, उनका सौभाग्य है, या उनकी किस्मत अच्छी है। किस्मत हमेशा कर्मों से बनती है। अगर आप कर्म करेंगे, आज के टाइम में, वर्तमान में रह के, प्रेजेंट में रह के अगर कर्म करते हैं तो आपका भविष्य अच्छा बनेगा। भविष्य कर्मों के आधार पर बनता है। उसके बाद है जी फॉर ग्रेटफुलनेस। जब हमारे अंदर ग्रेटफुलनेस रहती है, हमारे अंदर कृतज्ञता रहती है, तो निश्चित रूप से ईश्वर हमें बहुत बड़ी शक्ति देता है। कहते हैं ना कि जब हम दिल से शुद्ध रहते हैं या हृदय से शुद्ध रहते हैं तो ये प्रकृति, ये कायनात पूरी हमारे सफलता के लिए लग जाती है। और हमारे जीवन में मैंने बहुत बार देखा है कि हम कृतज्ञता नहीं रखते हैं अपने टीचर्स के प्रति। जैसे हमारे स्टूडेंट, आज जो माहौल है, मैंने देखा है कि जब हम छोटे होते थे, पढ़ते थे,
तो टीचर ने जो बोल दिया वो पत्थर की लकीर होती थी। हम उनके चरण छूते थे, पैर छूते थे, उनकी बातों पर विश्वास करते थे। वो जो कहते थे उनकी बातों में हमारा पूरा जीवन निकलता था, उसी के अनुसार, उन्हीं के पद चिन्हों पर, उन्हीं के बताए हुए प्रेरणा से हम चलते थे। लेकिन आज हमारे स्टूडेंट्स में, हमारे नौजवान साथियों में, खासकर नौजवान पीढ़ी, जितनी बड़ी संख्या स्टूडेंट्स की है नौजवान पीढ़ी की, उतनी बड़ी संख्या और कहीं नहीं है। और वो उनके अंदर कृतज्ञता की कमी आई है, ग्रेटफुलनेस की कमी आई है कि हम, हमारे लिए हमारे टीचर्स, हमारे माता पिता, हमारे रिश्तेदार कितनी मेहनत करते हैं, अपना जीवन बलिदान कर देते हैं, अपना जीवन न्यौछावर कर देते हैं पूरा, लेकिन फिर भी हम उनके प्रति कृतज्ञता जाहिर नहीं कर पाते हैं। कितने ऐसे स्टूडेंट है या कितने ऐसे युवा हैं जो आज कॉलेज में इतनी हिम्मत रखते हो कि अपने टीचर्स के पैर छूते हो, क्योंकि हमें शर्म आती है। हम दिल से कमजोर हैं, हम मन से कमजोर हैं, हम मस्तिष्क से कमजोर है कि अगर मैं पैर छूंगा तो दूसरे लोग क्या कहेंगे, दूसरे स्टूडेंट क्या कहेंगे, दूसरे जो हमारे साथी है, हमारे फ्रेंड्स है, वो क्या कहेंगे। उनको इसलिए शर्म आती है, अपने माता पिता के भी पैर छूते हुए इसलिए शर्म आती है कि मेरे जो पीयर ग्रुप के लोग हैं वो क्या कहेंगे। वो कुछ नहीं कहेंगे। ये हमारी संस्कृति है, ये हमारे कल्चरल हेरिटेज है कि हम जो है अपने बड़ों के, जिनसे हमें कुछ मिलता है, जिससे हमें कुछ सीखने को मिलता है, जो हमारे जीवन को आगे बढ़ाने का काम करता है, जो हमें संस्कारित करते हैं, जो हमारे जीवन में कुछ दिलाने की कोशिश करते हैं या हमें जीने का तरीका बताते हैं, उनके प्रति हमें हमेशा ग्रेटफुलनेस हमारी रहनी चाहिए, कृतज्ञता रहनी चाहिए। क्योंकि जब हम कृतज्ञ रहते हैं, ये स्पंदन का खेल है, ये वाइब्रेशन का खेल है। ये प्रकृति में हमेशा, इस यूनिवर्स में स्पंदन होता है, वाइब्रेशन होती है, एक दिल से दूसरे दिल तक वाइब्रेशन जाती है। और ईश्वर, जिसको हम प्रकृति कहते हैं, जिसको सर्वशक्तिमान कहते हैं, जिसको हम जो इस रचना करने वाला है, जब हम उसके प्रति ग्रेटफुलनेस रहती है, या हमारे जिन्होंने हमें कुछ बताया उनके प्रति हमारे ग्रेटफुलनेस रहती है, तो उनकी जो आशीर्वाद है या उनका जो पॉजिटिव वाइब्रेशन है वो हमें मिलती है। और वो पॉजिटिव वाइब्रेशन निश्चित रूप से हमारा भला करती है। भले ही आप इस बात पे विश्वास न करें, लेकिन ये वाइब्रेशन का खेल है। हमेशा ही दिल धड़कता है, एक वाइब्रेशन होती है, हर काम में वाइब्रेशन होती है। जब तरंगे चलती है, हमारी आवाज जाती है, एक से दूसरे देश में भी जाती है, दूसरे लोगों तक भी जाती है, टेलीफोन के माध्यम से जाती है, रेडियो के माध्यम से जाती है, टेलीविजन के माध्यम से जाती है, तो ये वाइब्रेशन ही है। इसी प्रकार से हमारी वाइब्रेशन विदाउट वायर या विदाउट एनी इक्विपमेंट के भी जो है वाइब्रेशन जाती है। और निश्चित रूप से जब हम अपने टीचर्स का, अपने पेरेंट्स का, अपने रिलेटिव्स का जो हमारा भला चाहते हैं, या अपने फ्रेंड्स का, अपने दोस्तों का जो हमारा भला चाहते हैं, उनके प्रति अगर ग्रेटफुलनेस है तो निश्चित रूप से हमारे अंदर निडरता आएगी और हम जीवन में हमेशा तरक्की करेंगे। अगला जो लास्ट लेटर है वो है ई फॉर एनर्जेटिक। हमेशा एनर्जेटिक रहना चाहिए व्यक्ति को, मरा हुआ नहीं, आलस्य में नहीं। हमेशा सुबह जल्दी उठो, जल्दी उठ के योग करो, प्राणायाम करो। ये जीवन जो है ऑक्सीजन का खेल है। अगर ऑक्सीजन आपका लेवल कम है तो आप उतने ही आलसी है। अगर आप जीवन में ऑक्सीजन भरपूर मात्रा में लेते हैं तो उतनी एनर्जी मिलेगी। फ्यूल है ये हमारे जीवन का। जैसे हम मोटर वाहन में, मोटर गाड़ियों में फ्यूल डलवाते हैं, डीजल पेट्रोल डलवाते हैं या सीएनजी डलवाते हैं, उसी प्रकार से हमारे जीवन के लिए ऑक्सीजन फ्यूल है। अभी आपने देखा होगा पिछले साल जो नोबेल प्राइज मिला था हमारे मेडिकल के जो हमारे लोग थे उनको, उन्होंने इसी चीज पे मेडिकल में इसी वजह से नोबेल प्राइज मिला था कि उन्होंने ये खोज की कि जो हमारा शरीर का हर सेल है, हर सेल एडी से चोटी तक, अगर उसमें ऑक्सीजन अगर हम भरपूर मात्रा में पहुंचा देते हैं तो वो जो है इतना सर्वशक्तिमान हो जाता है कि हम कोई भी काम बड़ी आसानी से कर सकते हैं। तो हमारा हर सेल, बॉडी का हर सेल अगर ऑक्सीजन प्राप्त करता है तो निश्चित रूप से हम बहुत ही शक्तिवान, हम बहुत ही एनर्जेटिक होते हैं। तो करेज जो है जीवन में, इसका एक महत्व है। अगर हम करेजियस हैं, अगर हम हिम्मती हैं, अगर हम साहसी हैं, तो और अगर हम ऑनेस्टी है हमारे अंदर, तो हमारे अंदर हमेशा निडरता रहेगी, जो स्वामी विवेकानंद ने हमेशा से ही कहा है। निश्चित रूप से मैं समझता हूं कि देश जिस प्रकार से आगे बढ़ रहा है, जिस प्रकार से हम नौजवान साथियों को आगे बढ़ा रहे हैं, या नौजवान साथी
जो प्रेरणा लेकर स्वामी विवेकानंद से आगे बढ़ रहे हैं। आप लोग जानते होंगे 11 सितंबर का वो एक घटना, जब स्वामी विवेकानंद ने अमेरिका के शिकागो में कहा था, एक छोटी सी बात के ऊपर लगभग कई मिनट तक तालियां बजती रही थी कि ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। जहां ब्रदर्स एंड सिस्टर की जो संस्कृति है, और वहां पे तो ये सब चीज हमारे देश में अगर ब्रदर सिस्टर कहे, बहनों और भाई कहे, तो ज्यादा आश्चर्य नहीं होता। लेकिन पाश्चात्य देशों में, जो भी हमारे जैसे अमेरिका में शिकागो में ये बात कही, तो मुझे लगता है कि वहां पर इस प्रकार की कोई संस्कृति नहीं है, उस प्रकार से कोई रिलेशन नहीं है। तो वहां पर स्वामी जी का भव्य अभिनंदन हुआ था निश्चित तौर पे। जब हम अपनी संस्कृति से जुड़कर बात करते हैं या हम प्रकृति से जुड़ के बात करते हैं, तो निश्चित रूप से हम बहुत बड़ा हमें फायदा मिलता है, या बहुत बड़ा हम उसको योगदान के रूप में ले सकते हैं, या हम उसको अपने देश के निर्माण के रूप में उसको लगा सकते हैं। तो मैं अपनी बात के माध्यम से यही समझाना चाह रहा हूं कि हमारे जो जीवन की जो मूल्य है, उन पे हमें काम करना चाहिए। अगर हमारे पास लाइफ स्किल्स है, जीवन के मूल्य है, तो हम जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। स्वामी विवेकानंद हमेशा ही कहते थे कि अपने शब्दों पे ध्यान दो। जो आप बोलते हो उसको करने की कोशिश करो, जो आप बोलते हो उसको अच्छा बोलो, जो आप बोलते हो वो पॉजिटिव हो, वो एनकरेजिंग हो, वो इंस्पिरेशनल हो। अगर आप बोलते हो तो किसी का भला होना चाहिए। हम नेगेटिविटी कभी भी न लेकर आए, पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ें। अगर जो वर्ड पावर है, हमारी जो शक्ति है, शब्द की शक्ति है, वो हमारे पूरे व्यक्तित्व का निर्माण करती है। अगर आप अच्छा बोलते हो तो आपका व्यक्तित्व अच्छा है, अगर आप नेगेटिव बोलते हो तो आपका व्यक्तित्व नेगेटिव है, अगर आप जो है डिस्करेजिंग बोलते हो तो आपका व्यक्तित्व जो है वो डिस्करेजिंग है एकदम से। और आप किसी भी व्यक्ति को शब्दों से कितना कुछ दे सकते हो, शायद आपको इस बात का पता नहीं होगा। अगर आप किसी अपने साथी को, किसी अपने फ्रेंड्स को एक बार ये बोल दें कि यार यू आर लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल, या यू आर लुकिंग वेरी हैंडसम, तो आप देख सकते हो उसके अंदर अंतर मन में कितना उत्साह जागृत हो जाता है। आपने देखा होगा जब हम किसी को कहते हैं कि आप बहुत अच्छे कपड़े पहन रहे हो आज, तो निश्चित रूप से उसको उत्साह मिलता है। जब हम कई बार किसी को शब्दों के माध्यम से मारते हैं और उसको कहते हैं आज आप बहुत वीक लग रहे हो, आज आप बहुत कमजोर लग रहे हो, आपकी आंखें पीली पीली है, तो निश्चित रूप से ये एक डिस्करेजिंग है, ये नेगेटिविटी है। आप नेगेटिविटी उसके अंदर भेज रहे हो, तरंगे भेज रहे हो। और वो व्यक्ति निश्चित रूप से, अगर आप बार बार ऐसा कहोगे तो निश्चित रूप से वो व्यक्ति बीमार ही हो जाएगा। उसको अगर आप ये कहोगे कि आंखें पीली पीली दिख रही है, तो उसको जॉन्डिस हो जाएगा, पीलिया हो जाएगा। और अगर आप उसको बार बार अच्छा बताओ कि यू आर वेरी हार्ड वर्किंग। हम अपने बच्चों से, जो आज नौजवान पीढ़ी में है या नौजवान अवस्था में है, हम जब उनको नेगेटिविटी देने की कोशिश करते हैं और पॉजिटिव रिजल्ट चाहते हैं, तो निश्चित रूप से ये कभी नहीं हो सकता। स्वामी विवेकानंद ने हमेशा कहा है कि अगर पॉजिटिव रिजल्ट चाहते हो तो पॉजिटिविटी का संचार करो। हम बच्चों को अच्छा बनाना चाहते हैं, लेकिन हम नेगेटिव वाइब्रेशन उनके अंदर उनका संचार करते हैं। इतने अच्छे नंबर आ जाते हैं। मैं कई बार सोचता हूँ स्टूडेंट्स के, बच्चों के 12th में, 10th में या ग्रेजुएशन में 98% नंबर आ रहे हैं, 99% आ रहे हैं, फिर भी हम हमेशा अपने बच्चों को डिस्करेज करने की कोशिश करते हैं। अरे फला के इतने नंबर आ गए, फला के 100% परसेंटाइल आ गई, आपकी 98 आ गई। तो ये जो है नेगेटिविटी है। अगर अपने बच्चों को, अपनी नौजवान पीढ़ी को आगे बढ़ाना है तो उसकी प्रेज करो। प्रेज करना बहुत बड़ी बात है। प्रेज हर व्यक्ति नहीं कर सकता। अगर हम भगवान के आगे खड़े होकर हाथ जोड़ के किसी के बारे में ये कहें कि हे ईश्वर, इसका अच्छा करना या इसके जीवन में हमेशा खुशी लेकर आना, तो ये भी कहना बहुत मुश्किल है। प्रेज एक बहुत बड़ा हमारे पास जो है टूल है कि हम किसी को कितना अच्छा बना सकते हैं। अगर प्रेज से नहीं बना सकते तो नेगेटिविटी से तो कभी नहीं बना सकते। ये हमें हमेशा से दिमाग में लगा कर रखना चाहिए कि अगर प्रेज हम बच्चे करेंगे, स्टूडेंट ही करेंगे, तो निश्चित रूप से वो बच्चा आज अगर 10% पे है तो कल 20% पे मिलेगा, अगले दिन वो 30% पे मिलेगा, आगे ऐसे बढ़ता बढ़ता जाएगा तो बहुत आगे तक जाएगा। क्योंकि जिसकी जो शक्ति है,
इस्तेमाल हमेशा, उस ताकत का इस्तेमाल हमेशा उसका सदुपयोग हमेशा उसकी अच्छाई के लिए हमें करना चाहिए। तभी मैं समझता हूं कि हम जो है किसी का भला कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से वर्ड पावर ऐसी पावर है कि हम उसके जीवन को बहुत अच्छा बना सकते हैं। इसलिए शब्द जो है बढ़िया करें, बढ़िया उसका उपयोग करें। आप किसी से गलती हो जाती है, आप सॉरी फील करते हैं, ये मैजिक वर्ड है, सॉरी कह दिया तो कितना एकदम से आपको माफी मिल जाएगी। अगर आप किसी को प्लीज बोल देते हो तो कितना बढ़िया लगता है, प्लीज ये मेरा काम कर दीजिए, तो बहुत जल्दी से करेंगे। आप थैंक्स बोलते हो किसी ने आपको बस में सीट दे दी या आपने किसी ने आपका सहयोग कर दिया तो आप थैंक्स बोलते हो। लेकिन ये उन्हीं लोगों में ग्रेटफुलनेस रहती है जिसके दिल में ये प्रैक्टिस की हुई है, जिसने अपने मस्तिष्क में प्रैक्टिस की हुई है कि मेरे शब्दों की वजह से किसी का अहित नहीं होना चाहिए या किसी का बुरा नहीं होना चाहिए। और एक चीज स्वामी विवेकानंद ने हमेशा ये कही है कि सेल्फ अवेयर रहिए। सेल्फ अवेयर मतलब कि हम जो है अपनी वीकनेस को स्ट्रेंथ में कैसे बदलें। अगर हम अवेयर हैं तो हम अपनी वीकनेस को स्ट्रेंथ में बदल सकते हैं। अगर हम अपनी वीकनेसेस के प्रति अवेयर हैं कि मेरी ये वीकनेसेस है तो हम स्ट्रेंथ में उसको बदल सकते हैं। अगर हम अवेयर नहीं है कि मेरे आसपास क्या हो रहा है, मेरे परिवार के साथ क्या हो रहा है, मेरी पढ़ाई में क्या चल रहा है, या मेरी सेहत कैसी है, मेरा शरीर कैसा है, क्योंकि अवेयर जो है आदमी को 4 स्टेप पे होना पड़ता है। जैसे स्वामी विवेकानंद हमेशा कहते थे कि 4 स्टेप पे हमें अवेयर रहना चाहिए। एक अवेयर है मेरे प्रति अवेयरनेस, मेरे प्रति अवेयरनेस, यानी कि अवेयरनेस का मतलब ये होगा मेरे प्रति अवेयरनेस 2 चीजों से है, एक एजुकेशन से, एक हेल्थ से। अगर मैं हेल्दी हूं तो मैं सब कुछ कर सकता हूं। अगर मैं हेल्दी नहीं हूं, मेरा स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, तो मैं युवा नहीं हूं। मैं युवक होने का जो दम्भ भरता हूं वो मैं अपनी सेहत की वजह से, अपनी ताकत की वजह से, अपनी एनर्जी की वजह से भरता हूं। अगर वो एनर्जी मेरे अंदर है तो मैं युवा हूं। और अगर मैं एजुकेटेड हूं, मैं शिक्षित हूं, तो मैं एक पढ़ा लिखा नागरिक होने के नाते अपने देश के निर्माण में योगदान कर सकता हूं। और दूसरा स्टेप उन्होंने बताया कि मेरे परिवार के प्रति जो अवेयरनेस है वो कितनी है, कि मेरे परिवार ने मेरे लिए क्या किया है, मेरे परिवार ने मेरी पढ़ाई पे कितना खर्च किया है, या मेरे परिवार ने मुझे कैसे संस्कार दिए हैं, या मेरे परिवार को आज किस चीज की जरूरत है। ये अगर मेरे अंदर अवेयरनेस है, मेरे दिल में या मेरे मस्तिष्क में अवेयरनेस है, तो मैं निश्चित रूप से अपने परिवार का ख्याल रखूंगा, अपने माता पिता का ख्याल रखूंगा, मेरे पेरेंट्स का ख्याल रखूंगा, और मेरे पेरेंट्स की क्या स्थिति है, मेरे परिवार की क्या स्थिति है, उस स्थिति पर काम करने की कोशिश करूंगा। और तीसरा स्टेप है मेरे समाज के प्रति अवेयरनेस। मेरे समाज के प्रति यानी कि मेरा समाज ने जो मुझे दिया उसको क्या जरूरत है। मेरा एनवायरमेंट जिसने मुझे ऑक्सीजन दी, जिसने मुझे शुद्ध वातावरण दिया, उसकी वजह से मैं आगे बढ़ रहा हूं, उसके प्रति मेरा क्या मेरी जिम्मेदारी है। या मेरे स्कूल, मेरे कॉलेज जिन्होंने मुझे शिक्षा दिया, जो मेरे समाज में है, जिन टीचर्स ने मुझे शिक्षित किया, जिन लोगों ने मुझे शिक्षित किया, जिन लोगों ने मुझे संस्कारित किया, जिन लोगों ने मुझे रोड दिए, जिन लोगों ने मुझे स्कूल दिया, जिन लोगों ने मुझे कॉलेजेस दिया, और जिन लोगों ने मुझे शुद्ध पीने के लिए पानी की व्यवस्था कराई, अगर मैं उस समाज के प्रति मेरी जिम्मेदारी है और मैं अवेयर हूं, उस चीज को सोचता हूं, समझता हूं, तो निश्चित रूप से मैं एक अच्छा योगदान अपने देश के निर्माण में कर सकता हूं। और चौथा स्टेप है राष्ट्रीय स्तर पर, कि जो राष्ट्र मेरा है मैं उसके प्रति राष्ट्र भक्त रहूं। मेरी जितना भी मुझे फायदा मिला है या जितना भी मुझे आज मिला है वो सब चीज मेरे राष्ट्र की वजह से मिला है। राष्ट्र क्या है? राष्ट्र को एक व्यक्ति नहीं है। एक बार हमारे जो पहले प्रधानमंत्री है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, अपने एक ऑडियंस में, भीड़ में कहा था, लोगों से कहा था, भारत माता की जय, भारत माता की जय। लोग भारत माता के नारे लगा रहे थे, तो उन्होंने पूछा कि भारत माता क्या है, तो लोगों ने कहा कि भारत माता एक माता है, या उन्होंने किसी ने अलग अलग उत्तर दिया कि वो एक देवी है, या हमारे जो सब लोग है वो है, वो माता है। तो पंडित जवाहरलाल ने बहुत एक सुंदर बात कही थी कि भारत माता क्या है? भारत माता हमारे पहाड़ है, भारत माता हमारी नदियां है,
भारत माता हमारी जनसंख्या है, भारत माता हमारी बेटियां हैं, भारत माता हमारी बहनें हैं, भारत माता हमारी माताएं हैं, भारत माता ये पूरे पेड़, पूरा जंगल भारत माता है। जो भी हमारे देश में समाया हुआ है, जो भी खेत खलियान, वो सब भारत माता है। इसलिए हम भारत माता की जय बोलते हैं। राष्ट्र जो है वो भारत माता है और उसकी जयकारा बोलना, उसकी जय जयकार करना, ये हमारा धर्म है। क्योंकि जब हम अपने धर्म से या अपने अपने मूल्यों से या अपने कर्मों से विमुक्त होते हैं तो निश्चित रूप से हम एक राष्ट्रवादी नहीं रहते हैं। और राष्ट्रीयता हमारे अंदर तभी आती है कि हम अपने काम को अच्छी तरह करें। अब कैसे हम देशभक्त बने, कैसे आजादी की लड़ाई से जब हमने शुरू किया, आजादी की लड़ाई में लाखों नौजवान साथियों ने अपना बलिदान दिया, तो हम अपना कैसे योगदान दे सकते हैं। आज बलिदान की जरूरत नहीं है, आज योगदान की जरूरत है। और उस योगदान को कैसे दे सकते हैं? अगर मैं टीचर हूं तो एक अच्छा टीचर बन के दिखाऊं। अगर मैं स्टूडेंट हूं तो एक ऑनेस्ट स्टूडेंट बन के दिखाऊं। अगर मैं एक फार्मर हूं तो अच्छा फार्मर बन के दिखाऊं। मैं ड्राइवर हूं तो अच्छा ड्राइवर बन के दिखाऊं। मेरा जो भी कर्तव्य है वो मेरा ऑनेस्टी के साथ होना चाहिए। अगर मैं किसी फैक्ट्री में काम करता हूं तो उस फैक्ट्री में अच्छी तरह काम करूं, मैं चोरी ना करूं, मैं झूठ ना बोलूं और मैं ईमानदारी के साथ कार्य करूं। यही इस जीवन का, हमारे जो हम राष्ट्र के प्रति वफादारी या राष्ट्र के प्रति कृतज्ञता या राष्ट्र के प्रति ग्रेटफुलनेस, यही हमारी है। और हम जो है इस वजह से 4 स्टेप पे अपना काम कर सकते हैं। और अपनी जितनी भी वीकनेसेस है, अगर वीकनेस को, जैसे वाज का फार्मूला हम कहते हैं इसको, वाज का फार्मूला, वाज मतलब WAS का मतलब है W फॉर वीकनेस, वीकनेसेस जो हमारी है। अगर हम अवेयर है वीकनेसेस के प्रति, W वीकनेसेस, अगर अवेयर है, A अवेयर है, तो उसको स्ट्रेंथ में बदला जा सकता है। अगर हम अपनी वीकनेसेस के प्रति सचेत नहीं है तो हमारी स्ट्रेंथ कभी भी नहीं बन पाएगी। अगर मेरे अंदर आलस्य है और मैं अवेयर हूं कि मैं आलसी हूं, मैं जो है काम नहीं करता हूं, तो मैं अवेयर हूं, उसमें मंथन करता हूं, मनन करता हूं, ये स्टूडेंट्स के लिए कह रहा हूं मैं, तो निश्चित रूप से मैं उसको एक स्ट्रेंथ अपनी बना सकता हूं, मैं बहुत अच्छा स्टूडेंट बन सकता हूं। अगर मैं पढ़ाई लिखाई में कम ध्यान देता हूं तो वो, अगर उसके प्रति अवेयर हूं तो मैं उसको स्ट्रेंथ बना सकता हूं। टाइम मैनेजमेंट मेरा अच्छा नहीं है तो टाइम मैनेजमेंट में अच्छा कर सकता हूं। टाइम एक कीमत है। स्वामी विवेकानंद हमेशा कहते थे समय एक शक्ति है, समय हमारे पास एक फ्यूचर के रूप में हम उसको देखते हैं। अगर समय को देखो, 1 साल का अगर समय की कीमत जानो तो एक स्टूडेंट से पूछे जिसने बहुत मेहनत की और फेल हो गया, तो वो बताएगा आपको 1 साल की मेहनत का नतीजा क्या होता है। अगर आप एक दिन की वैल्यू जानना चाहते हो तो किसी भी ऐसे व्यक्ति से पूछिए जो चौक चौराहे पे खड़े रहते हैं, जो मेहनत करते हैं, जो काम करते हैं, जो रोजमर्रा की जिंदगी जीते हैं और जो चुनाई का काम करते हैं, खुदाई का काम करते हैं, जो हमारे श्रमिक भाई है, उनसे पूछिए अगर एक दिन चौक चौराहे पर उनको कोई लेने नहीं आए, जिसकी वजह से उनकी रोजी रोटी चलती है, जिनकी वजह से उनके बच्चों की दवाइयां चलती है, जिनकी वजह से उनके बच्चों की पढ़ाई चलती है, तो वो बताएगा आपको एक दिन की कीमत क्या होती है। अगर आप 1 मिनट की कीमत जानना चाहते हो तो आप ऐसे छात्र से पूछिए जो कोई कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन देने जा रहा है और ट्रेन में जा रहा है और 1 मिनट के पहले ही उसकी ट्रेन छूट गई और उसको दिख रही है ट्रेन जाती हुई, तो वो बताएगा कि 1 मिनट की कीमत क्या है। अगर आप नैनो सेकंड तक जाओ, नैनो सेकंड की अगर कीमत जानना चाहो तो आप ऐसे धावक से पूछिए। आपने मिल्खा सिंह का नाम सुना होगा, आपने पीटी उषा का नाम सुना होगा, आपने बहुत से ऐसे नौजवान साथियों का नाम सुना है जो ओलंपिक में मेडल से चूक जाते हैं। पीटी उषा और ओलंपिक का मैं उदाहरण देना चाहता हूं, जो नैनो सेकंड से, सेकंड के 1000वें भाग से रह गए, तो वो बताएगा आपको नैनो सेकंड की वैल्यू क्या होती है। तो समय की कीमत जानो और समय की कीमत के साथ हम अगर आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से आज हम इस देश में अपना योगदान दे सकते हैं, इस देश को आगे बढ़ा सकते हैं, देश के निर्माण में हम युवा होने की भूमिका अदा कर सकते हैं। मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम दूंगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। Thank you so much, sir. Now, I would like to invite Dr. Devendra Singh Dahiya for his address.
Dr. Devendra Singh Dahiya. Welcome, sir. थैंक यू वेरी मच। मेरे साथी श्री नरेंद्र यादव जी ने बहुत बढ़िया विचार रखे और बड़ा इलेबोरेट से किया इन्होंने स्वामी जी की जिंदगी पे और युवाओं का जो रोल है नेशन बिल्डिंग पे। इस वेबिनार में मौजूद डॉक्टर अरुणाकर, प्रिंसिपल, कन्वीनर डॉक्टर शमी नागपाल, co-conveners Dr. Surendra Kumar and Suresh Yadav, organizing secretaries Dr. Sharmila Gunpal, Dr. Sunita Lega, and committee members Ramesh Punia, Priyanka, Mandeep, Rajiv Turkiya, and dear students. जैसा यादव साहब ने बहुत विस्तार से बताया कि आज का जो दिन है हम किस लिए सेलिब्रेट करते हैं और उसकी क्या महत्वता है, उस कड़ी में मैं कुछ चीजें और जोड़ना चाहूंगा कि जो स्वामी जी, स्वामी विवेकानंद जी के गुरु थे रामाकृष्ण परमहंस, उन्होंने स्वामी जी के अंदर जो स्पार्कल या एक कहते हैं ना तेज देखा उनके व्यक्तित्व में। और स्वामी जी खुद एक काम ये नहीं कर सकते थे कि पूरे वर्ल्ड में भ्रमण करके जो एक स्पिरिचुअलिज्म को आगे बढ़ा सके, तो उन्होंने स्वामी विवेकानंद को मोटिवेट किया कि यू गो फॉर स्पिरिचुअल रीजनरेशन ऑफ इंडिया एंड द वर्ल्ड। उन्होंने उनको सीमित नहीं रखा कि वो भारत में ही रह के स्पिरिचुअलिज्म को आगे बढ़ाएं। और जब स्वामी जी ने हिंदुइज्म को आगे बढ़ाया तो उनका कहना यह था कि हिंदुइज्म इज नॉट ए रिलीजन, इट इज ए वे ऑफ लाइफ। तो उन्होंने स्पिरिचुअलिटी की बात की हमेशा, कभी रिलीजन की बात नहीं की। और उनका जो रिलीजन टॉलरेंस पे स्पीच था शिकागो में, जैसा यादव साहब ने भी कहा, 1893 में वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन शिकागो में हुई थी। उस स्पीच में उन्होंने रिलीजन टॉलरेंस एंड टू फेनेटिसिज्म पे अपना भाषण कंसंट्रेट किया था। और उस भाषण का ये प्रभाव था कि उनको स्टैंडिंग ओवेशन मिला और जो नजरिया था दुनिया का देखने का भारत की तरफ, वो सारा बदल गया था। तो रामाकृष्ण जी का ये एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था। ये एक गुरु का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है कि वो अपने जो डिसिपल है उसको कैसे पहचाने और उसको मोटिवेट करे ताकि वो आगे जाके समाज के सुधार के लिए काम करे। और वही काम स्वामी जी ने बखूबी किया। स्वामी जी ने जो सोशल रिफॉर्म है उस पे भी बहुत उनका कंट्रीब्यूशन है। और जो आज का दिन है वो मनाया भी इसलिए जाता है कि हमारे वो यूथ आइकन हैं और जो आज यूथ की प्रॉब्लम्स हैं या उनको जो उनके जो इश्यूज हैं उनको हाईलाइट किया जाए और उन पे काम किया जाए ताकि जो यूथ का पर्सनल डेवलपमेंट है वो बेहतर हो और यूथ की जो भागीदारी है सोशल डेवलपमेंट में या सोशल कंट्रीब्यूशन है या नेशन डेवलपमेंट है उसमें वो ज्यादा बढ़िया काम कर सके। और ये हमने देखा भी है कि जो हमारा कोविड पैंडेमिक चल रहा है, फर्स्ट वेव जब शुरू में आई तो बहुत ज्यादा पता नहीं था, लोगों को बहुत थोड़ा सा घबराहट थी कि ये क्या बीमारी एकदम से आ गई है। और वर्ल्ड ओवर इसमें प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी, जो मोर्टेलिटी थी, डेथ्स थी, वो भी बहुत ज्यादा थी। और सेकेंड वेव में जो इंडिया में प्रॉब्लम्स आई, हॉस्पिटल्स में जितनी भीड़ रही, और अब थर्ड वेव है, ये शुरुआत है। तो इसमें मैं ये भी कहना चाहूंगा कि ये भी हमें ध्यान रखना है कि इसका हमें प्रिकॉशंस पूरी लेनी है। तो इस एंटायर पीरियड में मैंने ऑब्जर्व किया कि जो यूथ है, चाहे वो गांव में है चाहे वो हमारा स्टूडेंट है, एनएसएस वॉलंटियर्स हैं, एनसीसी कैडेट्स हैं, उन्होंने सोशल मीडिया पे अवेयरनेस प्रोग्राम्स किए कि कोविड पैंडेमिक से कैसे हम अपना बचाव करें। जो हमारी आयुर्वेदिक पद्धति है उसका कैसे इस्तेमाल करें, जो काढ़ा पीते हैं या जो हम
पेय पदार्थ इस्तेमाल करते हैं जड़ी बूटी का, उन्होंने उसमें भी कंट्रीब्यूट किया कि जब हमारा मेडिकल और पैरामेडिकल स्टाफ की शॉर्टेज हो गई थी, तो यूथ का कंट्रीब्यूशन हमारा वैक्सीनेशन में भी था, टेस्टिंग में भी था, क्योंकि वहां पे जहां भी इस तरह के सेंटर्स होते थे भीड़ हो जाती थी, रजिस्ट्रेशन में टाइम लगता था, तो वहाँ सोशल डिस्टेंसिंग करना और डिसिप्लिन मेंटेन करना, रजिस्ट्रेशन करना, तो ये भी हमारे एनएसएस वॉलंटियर या स्टूडेंट्स या यूथ ने, गांव में भी इस तरह के मैंने देखा कि बहुत लोगों ने आगे बढ़ चढ़ गए, क्योंकि यूथ है वो ये काम बच्चे या बुजुर्ग नहीं कर सकते, और जो एक सीनियर हो जाते हैं उनका रोल गाइडेंस में ज्यादा चला जाता है खुद करने के बजाय, तो यूथ ही है जो हमारा ये काम निडरता से कर सकता है, इसमें बिना डरे भी काम करना पड़ता है, क्योंकि जब जान का खतरा होता है या कोई बीमारी का खतरा होता है तो एक डर भी स्वाभाविक है, जो हमारा यूथ ही उसको आगे ले जा सकता है। जो 2022 यूथ डे का थीम है वो है ट्रांसफॉर्मिंग फूड सिस्टम्स, यूथ इनोवेशन फॉर ह्यूमन एंड प्लेनेटरी हेल्थ। क्योंकि हम अगर हेल्दी होंगे तो हम अपने कार्य बढ़िया से कर पाएंगे, हम अपना रोल बेटर प्ले कर सकते हैं किसी भी यूनिट में, चाहे वो हमारा इंस्टीट्यूट है, हमारी फैमिली है, हमारी सोसाइटी है या हमारा नेशन है। तो स्वामी जी ने इसके बारे में भी बहुत अच्छी बातें कही हैं, क्योंकि वो उनका जो he was very great source of inspiration and he taught us the importance of giving back। देखिए आज तो कई बार स्टूडेंट्स को लगता होगा कि हम अपना कैरियर बिल्ड करें, अपना आगे बढ़ें, लेकिन अगर आज से ही आप ये बातें सीखने लग जाओगे तो जिंदगी में किसी ना किसी स्टेज पे आपको ये जरूर लगेगा कि आज मैंने ये चीज हासिल कर ली है, तो मैं अपना सोसाइटी को, गांव को, अपने इंस्टीट्यूट को, अपने समाज को क्या वापस दूं ताकि वो भी आगे बेहतर बने। और दूसरा उनका यह था कि हाउ टू बिकम ए बेटर पर्सन। तो जो ये पर्सनल डेवलपमेंट है, जिसको बहुत बार हम पर्सनैलिटी डेवलपमेंट बोल देते हैं, तो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में तो और भी हमारे ट्रेट आ जाते हैं, जैसे हमारी ड्रेसिंग सेंस या और बहुत सारी चीज इंक्लूड होती हैं। जो पर्सनल डेवलपमेंट है वो खुद का जो इनर डेवलपमेंट है, आपका विजन डेवलपमेंट है, उससे रिलेट करता है। और पर्सनल डेवलपमेंट के लिए बहुत सारी चीजें हैं जो हमें ध्यान में रखनी पड़ती हैं। जैसा थीम मैंने बताया कि हमारा ह्यूमन एंड प्लेनेटरी हेल्थ, तो हेल्थ का जो इम्पोर्टेंस हो, यादव साहब ने भी उस पर प्रकाश डाला था कि हमें हेल्दी रहना कितना जरूरी है। तो यूथ को इसके लिए कुछ पैरामीटर्स हैं जिनको ध्यान में रखना पड़ेगा। उसमें 3 मुख्य बातें हैं, एक तो आपका फूड, दूसरा आपका थॉट प्रोसेस और तीसरा आपका स्लीप। अगर हम फूड हैबिट्स पे जाएं तो जो प्रेजेंट डे फूड हैबिट्स हैं, दे आर रीजन फॉर सो मेनी इलनेस, सो मेनी प्रॉब्लम्स। उनके कारण बहुत सारी युवा को समस्याएं हो रही हैं। उसका कारण है कि जो आप हमारे रूरल एरियाज में या हमारे फोर फादर्स की हम फूड हैबिट देखें तो उसमें जो मिलेट्स हैं, बाजरा वगैरह है या मल्टीग्रेन है, चना है, और भी हमारे काफी फूड हैं जिनको इस्तेमाल किया जाता है, उनका इनटेक बहुत ज्यादा था। आज अगर हम देखते हैं तो इनटेक मैक्सिमम व्हीट और राइस पे रुक गया है। इसी के साथ साथ जो हम फ्रेश वेजिटेबल्स का इस्तेमाल करते रहे हैं, गांव में साग वगैरह बना लेते हैं, अलग अलग सीजन पे हमें अलग अलग अवेलेबल हैं, ये वो बहुत इम्पोर्टेंट है हेल्दी रहने के लिए। अब प्रॉब्लम क्या है हमारे यहाँ पे? प्रॉब्लम आ गई है कि जो हम फास्ट फूड इनटेक है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है, और ऑफ कोर्स ये यूथ में ही ज्यादा है। फास्ट फूड का खाने का सबसे बड़ा कारण है कि वो स्वाद ज्यादा लगता है, और ऐसा नहीं है कि पहले हमारे बुजुर्ग बिल्कुल नहीं खाते थे, वो भी
जो पराठे बनाते हैं घर में या पकोड़े बनाते हैं अलग अलग सीजन में, वो भी फास्ट फूड है हमारे, लेकिन वो होम कुक्ड थे। उनका जो ऑयल और सॉल्ट कंटेंट वगैरह था, इंग्रेडिएंट थे, वो काफी बेटर थे। जो फास्ट फूड बाजार में अवेलेबल है उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि उसमें जो सॉल्ट है उसका कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है, और जो साल्ट है वो भी जैसे ड्रग्स होती हैं उसकी तरह एडिक्टिव है। और बार बार जहां आप एक बार जाने लग जाएं तो आपको उसी दुकान पे अट्रैक्शन लगने लग जाती है कि भाई इसका ये बहुत अच्छा है प्रोडक्ट। और दूसरा उसमें नेगेटिव एस्पेक्ट है कि जो ऑयल इस्तेमाल होता है आमतौर पे, वो या तो लो क्वालिटी का है या उसमें पाम ऑयल की कंसंट्रेशन ज्यादा रहती है जो सबसे चीप ऑयल है, और वो हमारा जो कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल है, उसको इंक्रीज करता है। तो ये दो फैक्टर हैं जिनको हमेशा जो हमेशा हमारे लिए हानिकारक हैं सेहत के लिए। तो मैं जो यूथ है उससे हेल्थ के लिए यही कहना चाहूंगा कि आप अपने जो मील्स हैं तीनों, वो घर में या अपना हॉस्टल में, मेस में अच्छी तरह उसका होना चाहिए। और स्वाद के लिए जरूर आप थोड़ी बहुत जो चीजें खाना चाहिए, बट डोंट स्किप द मील्स। दूसरा हमारा था कि खाने के साथ साथ कि भाई जो स्लीपिंग है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो स्लीप पैटर्न है वो बहुत डिस्टर्बिंग है आज के दिन। उसका एक कारण बड़ा तो ये जो मोबाइल है, हमारे गैजेट्स हैं, ये हैं। तो ये बेसिकली टू एज्ड वेपन है, दे कैन मेक यू, दे कैन ब्रेक यू। और ये स्लीप का ही एक बड़ा कारण नहीं है, एक स्ट्रेस का भी एक बड़ा कारण है, क्योंकि ये स्टडी का भी एक रुकावट है। इसका जो यूसेज है, जब ये मिसयूज या अब्यूज की कैटेगरी में चला जाता है, तो आपका जो कंसंट्रेशन है वो आपका बहुत कम होने लग जाता है। आप लंबे समय तक एक कार्य को करने के लिए सक्षम नहीं रहते हैं, और उससे आपका जो फर्क पड़ता है स्कोरिंग पे या आपकी अचीवमेंट्स पे, तो वो एक बड़ा बहुत फैक्टर है, जिससे स्ट्रेस भी हम कहेंगे कि वो उसका कारण भी यही है। तो ये हमें ध्यान रखना चाहिए। तीसरा हमारा जो है एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज हमें आमतौर पे आजकल देखा होगा कि जिम में जाने का बहुत ज्यादा ट्रेंड है। तो अगर आप कमरे में करेंगे तो ऑक्सीजन लेवल कम होगा, वहां पे हमारी एनारोबिक एक्सरसाइज होंगी। ये वहां के लिए तो अच्छा है, जो बड़े शहर हैं जहाँ पे खुली जगह नहीं है, आप घूम फिर नहीं सकते, भीड़ है। लेकिन गांव में या जो छोटे शहर हैं जहाँ पे पार्क या और खुली जगह हमें मिल जाती हैं, तो अगर आप वहाँ पे एक्सरसाइज करते हैं तो वो एरोबिक एक्सरसाइज है, और वो उसका जो एनवायरनमेंट के साथ आपका डायरेक्ट अटैचमेंट है वो बहुत पॉजिटिव इफेक्ट लाता है। वो अलग बात है कि किसी ने अपनी बॉडी बिल्डिंग करनी है या कंपटीशन में जाना है तो उसको तो जिम जाना पड़ेगा, उसके लिए हम मना भी नहीं कर रहे। और तीसरा पर्सनल डेवलपमेंट के लिए जो इम्पोर्टेंट हमारी बातें हैं वो है कि हम अपने जो क्वोशेंट हैं उनको कैसे इम्प्रूव करें। शुरू से ये एक कहा गया है कि आईक्यू बहुत इम्पोर्टेंट है, जिसका आईक्यू अच्छा है वो आगे जाएगा। आईक्यू जिसका शुरू से बचपन से बहुत ज्यादा है वो आगे बढ़ के रहेगा। तो देखिए उसका फर्क है। लेकिन जो लॉन्ग टर्म स्टडीज आई हैं उनके रिजल्ट ये कहते हैं कि अगर आप कंटिन्यूअस लर्निंग प्रोसेस जारी रखते हो तो ओवर ए लॉन्ग पीरियड आपका आईक्यू इंक्रीज हो जाएगा। और जो हाई के स्टूडेंट हैं, स्वेटर चंडीगढ़ से प्रोसेस को छोड़ देंगे तो इससे उनका सिलवाया आईक्यू नमिता से सानवी डिग्रेड होना शुरू हो जाएगा, डाउन होना शुरू हो जाएगा। ना ना ये तो मेरा 2-3 साल पहले के 2 ये कपड़े प्लीज निकल आए, अपना माइक म्यूट कर 2 लें, कुर्ते मैंने पहने। माइक म्यूट कर लें अपना। उसके बाद जब स्टडी हुई क्वोशेंट पे तो ये देखा गया कि आईक्यू से ज्यादा इम्पोर्टेंट इमोशनल क्वोशेंट है। तो इमोशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए अगर आप में इमोशन नहीं है तो आप कहेंगे कि पत्थर ही है। लेकिन इमोशंस का मतलब ये नहीं है कि आप, देखा होगा कई बार बहुत छोटी छोटी बातों पे बहुत ज्यादा खुश होने लग जाते हैं,
या छोटी बातों पे बहुत ज्यादा परेशानियां रोना धोना शुरू हो जाता है, तो इसका मतलब आपका इमोशनल क्वोशेंट पुअर है। तो उस पे बहुत वर्क करने की जरूरत है कि आपको जो इमोशंस हैं वो आपके कंट्रोल में रहें। और इमोशनल हेल्थ भी हम इसको कहेंगे कि वो आपका बहुत इम्पोर्टेंट है। आपको अपने टारगेट अचीव करने में, चाहे वो आपका हायर स्कोरिंग का है या आपको अपना कैरियर का है, उसमें ये इमोशनल क्वोशेंट बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट देखा गया कि जो स्पिरिचुअल क्वोशेंट है, स्पिरिचुअल क्वोशेंट जो स्वामी जी ने भी हमेशा जोर दिया स्पिरिचुअलिज्म पे, उनका एक और भी कहना था कि आप किसी भी रिलीजन को बिलोंग करते हैं, आप अपना रिलीजन फॉलो कीजिए, वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो दूसरे रिलीजन है उनको भी समान आप रेस्पेक्ट करें, वो भी एक स्पिरिचुअलिज्म का पार्ट है। जैसा उन्होंने कहा कि हिंदुइज्म तो रिलीजन है ही नहीं, ये तो स्पिरिचुअलिज्म ही है या वे ऑफ लिविंग ही है। फिर भी यहाँ पे पूजा पाठ अलग अलग करी जा रही हैं। एक घर में भी मेरे ख्याल में कई बार 5-5, 10-10 भगवान है, उनकी अलग अलग लोग पूजा करते मिल जाएंगे, और उसी घर में एक दो ऐसा भी मिल जाएगा जो उनको क्रिटिसाइज करेगा। कि ये जो वेरिएबिलिटी है ये भी अब अद्भुत है हमारे कंट्री की। तो अपना रिलीजन, अपना जो भी आपका थॉट है उसको आप फॉलो कीजिए, लेकिन जो और है उनको भी इक्वली रिस्पेक्ट करना हमारी अच्छी बात है। तो ये एक स्पिरिचुअल क्वोशेंट हायर का इंडिकेशन है। और मैं इसका एक एग्जांपल आपको क्या दूं कि जैसे आप स्टूडेंट हैं, चलिए मैं प्रोफेसर हूँ हॉर्टिकल्चर का, और आपने देखा होगा कि सब्जियां, फ्रूट्स, वेजिटेबल हम लेते हैं, उनमें दवाइयों का प्रयोग ज्यादा है और उसके कारण कई बार बीमारी भी होती है। तो हमारे 2 छात्र हैं, 2 युवा हैं, एक ही सोच है कि भाई मैंने ऑर्गेनिक फार्मिंग करनी है, जिससे कि बीमारी कम से कम हो, दवाइयों का इस्तेमाल कम से कम हो, और उससे मुझे अच्छा पैसा भी कमाना है, अपना लाइफ स्टाइल भी इम्प्रूव करना है, घर बनाना है, गाड़ी लेनी है, और उससे मुझे अच्छी कीमत मिलेगी, मैं मार्केटिंग बढ़िया करूंगा, तो गांव में मेरे पास जमीन है और मैंने खेती करनी है। तो ये बहुत अच्छी बात है। वो स्पिरिचुअल आदमी है कि वो भलाई के लिए काम करना चाहता है कि दवाइयों का इस्तेमाल ना हो, लोग बीमार ना पड़े, उसकी अच्छी सोच है। वो आदमी जो हमारा स्टूडेंट है उसका एक स्पिरिचुअल क्वोशेंट अच्छा है। एक और भी हमारा स्टूडेंट है, उसका भी मानना यही है कि भाई मैं भी, गांव में जमीन है और ये दवाइयों का, खाद का, रासायनिक खाद का बहुत अंधाधुंध प्रयोग हो रहा है, इसको कम करेंगे, खत्म करेंगे, और मैं भी इससे पैसा कमाऊंगा, अपना घर बनाऊंगा, अपना गाड़ी खरीदूंगा, अपना जो लाइफस्टाइल है उसको इम्प्रूव करूंगा। लेकिन साथ में साथ वो ये सोचता है कि जब मैं सक्सेसफुल हो जाऊंगा तो उसके साथ साथ में जो मेरे गांव में यूथ हैं या फार्मर्स हैं, मैं उनको भी मोटिवेट करूंगा कि ऑर्गेनिक फार्मिंग करें। और जब मैं वहां पे सक्सेस